السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ اگر ملک کی سیاست کی بات کی جائے تو اس وقت سیاست میں بہت چالکی سی کیفیت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد سیاسی محاذ پر گرما گرمی مزید بڑھ جائے گی۔ اس حوالے سے جو بھی اہم خبریں آئیں گی میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ فی الحال اس ہفتے کی اہم خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں کراچی سے آپ کو پورے ہفتے کی خاص خبروں سے آگاہ کروں گی اور ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک ایسے ادارے کے بارے میں بتاؤں گی جو لوگوں کی خدمت میں برسوں سے مشغول ہے، جہاں علاج کے لیے کوئی فیس نہیں اور نہ ہی کوئی کیش کاؤنٹر ہے۔ لاہور سے اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گی مناہل۔ جی مناہل، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ تھینک یو مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور کاسموپولیٹن کے مکمل احوال کے ساتھ مناہل شیخ۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ لاہور میں سجے افطار دسترخوان۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک میں لاہور میں سیکیورٹی انتظامات۔ رمضان کی مناسبت سے پنجاب میں قیدیوں کی سزاؤں میں 60 دن کی کمی کا اعلان۔ پنجاب میں گندم کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اور اسلام آباد سے سفر میں میرا ساتھ دیں گے خان۔ کیا حالات ہیں اسلام آباد کے؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ، آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والی اہم خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کا آغاز کر دیا۔ حلقہ بندیاں ہنگامی بنیادوں پر 4 ماہ میں مکمل کی جائیں گی۔ رمضان المبارک اور سیاسی صورتحال کے باعث مہنگائی میں پھر اضافہ۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 17.87% پر پہنچ گئی۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرولیم مصنوعات 35 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی سفارش کر دی۔ سال 2022 کی پاسپورٹ رینکنگ جاری۔ پاکستانی پاسپورٹ 112 میں سے 109 نمبر پر۔ پی آئی اے 22 اپریل سے آسٹریلیا کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز کرے گی۔ پروازیں جمعے کو لاہور سے سڈنی اور اتوار کو سڈنی سے لاہور چلائی جائیں گی۔ پاکستان 10 پن باؤلنگ لیگ کا آغاز۔ ایونٹ کے تمام میچز افطار کے بعد جناح پارک راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ لاہور اور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب میں کراچی سے آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے جان لیتے ہیں ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گراں فروشی عروج پر پہنچ گئی۔ شہری مہنگے پھل اور سبزیاں خریدنے پر مجبور۔ سندھ ہائی کورٹ کا گلستان جوہر میں پلاٹس پر قبضے کے خلاف درخواست کی سماعت کے موقع پر کہنا تھا کہ کے ڈی اے قبضہ مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ نے کے ڈی اے کو حکم دیا کہ جلد از جلد تمام قبضے ختم کرائے جائیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے جانوروں کو لمپی سکن ڈیزیز سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر سندھ کا سہون شریف میں رمضان بچت بازار کا دورہ۔ عوام کو سستی اشیاء خورد و نوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کراچی کو پاکستان کا پہلا انرجی سمپوزیم بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اس خبر سے کہ شہر کراچی میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گراں فروشی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہر رمضان کی طرح اس رمضان میں بھی شہری مہنگے پھل اور سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہری انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے ادارے کے بارے میں جس کا مقصد صرف اور صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ایسا کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ہے ریور انڈس، جس نے کئی ہزار سالوں سے زمین کے اس حصے کو زندگی دی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا کشمیر اور خیبر پختونخوا کو آبشاروں اور جھیلوں کا تحفہ دیتا ہوا، پنجاب اور سندھ کے میدانوں کو زرخیز کرتا ہوا، یہ دریا ہے سب کے لیے۔ اللہ نے بنایا ریور انڈس کو پاکستان کی شاہرگ، جس سے جڑی ہوئی ہے ہر پاکستانی کی دھڑکن۔ انڈس ریور کی یہی خصوصیات بنے ہمارے لیے مشعل راہ، اور یہی ہے انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کی بنیاد۔
इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क ने मुल्क भर में फैले हुए अपने अस्पतालों, क्लिनिक्स और सेहत के मराकज के जरिए पाकिस्तानियों को मुफ्त और मेयारी इलाज से मुस्तफीद करने का अज़म किया है। आइए इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क का हिस्सा बनिए और खिदमत के इस सफर में हमारा साथ दीजिए। आज 8 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और रमज़ान का पहला अशरा पूरा होने में अब 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना एक मेहमान की तरह हमारे पास आता है। इस मेहमान की अच्छी तरह तकरीम करें। ये महीना अल्लाह ताला की इबादत, गुनाहों की मग़फ़िरत के साथ साथ इंसानियत के खिदमत के लिए भी अल्लाह को राज़ी करने का है। आज कॉस्मोपॉलिटन में हम एक ऐसे ही इदारे की बात करेंगे जिसके क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन अली बहादुरानी, जो कि मैनेजर हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इंडस हॉस्पिटल ने कब अपना काम का बाकायदा आगाज़ किया? इंडस अस्पताल ने 2007 अगस्त में अपनी बुनियाद डाली थी और 150 बिस्तरों से कोरंगी के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था। उस वक्त बहुत छोटा सा अस्पताल था और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडस अस्पताल एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स बन चुका है। इंडस अस्पताल जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है और एक ही छत के नीचे हम तमाम तर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। यानी इंडस अस्पताल की अगर हम मज़ीद बात करते हैं यूनिक फ़ीचर्स के हवाले से, तो इंडस अस्पताल पाकिस्तान का ऐसा पहला हॉस्पिटल है जो कि मुकम्मल तौर पर पेपरलेस है और 100% मुफ्त और मयारी इलाज इस वक्त फराहम कर रहा है। अच्छा मोहसिन साहब, जैसे आपने बताया कि ये कोरंगी में क़याम हुआ ना, तो कोरंगी तो कराची में, तो क्या सिर्फ कराची में ही इंडस हॉस्पिटल है या पूरे पाकिस्तान में है? नहीं, हमने स्टार्ट कोरंगी से किया जहाँ पर 150 बिस्तरों से हमने स्टार्ट लिया था, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन इस वक्त हम मुल्क के अंदर तकरीबन हमारे 13 अस्पताल इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद हैं और 26 प्राइमरी केयर की जो क्लिनिक्स हैं वो मुल्क भर के बेशतर शहरों में ये मौजूद हैं और अवामुन्नास को मुफ्त और मयारी इलाज की खिदमात फराहम कर रही हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात है, ख़ास बात बताइए मुझे इंडस हॉस्पिटल की जो इसे सबसे यूनिक बनाए? देखिए, 2 बुनियादी चीज़ें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तो ये 100% मुफ्त इलाज फराहम करता है। पूरे नेटवर्क में, पूरे हस्पताल में कहीं पर भी आपको एक कैश काउंटर इसमें नज़र नहीं आएगा और पाकिस्तान का पहला पेपरलेस हॉस्पिटल है और जो भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर उनकी इलाज और मुआलजे की सहूलियात को किया जाता है। अच्छा, मरीज़ कितने आते हैं? इस वक्त अगर मैं माहाना बुनियादों पर हम बात करें तो तकरीबन 4,50,000 मरीज़ हमारे नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स से इस वक्त फैसिलिटेट होते हैं माहाना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक सिस्टम होता है ज़कात का और एक होता है डोनेशन का, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं कि किसको ज़कात के पैसों से इलाज करवाना है, किसको डोनेशन के पैसों से? अच्छा, देखें, शरिया की कुछ गाइडलाइन शरिया ने हमें दी है कि ज़कात किन लोगों पर लग सकती है और किन पर नहीं। इलाज इंडस अस्पताल में आने वाले तमाम मरीज़ों का ही किया जाता है, लेकिन चूँकि हमें शरिया ने जो गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक हमें आने वाले तमाम मरीज़ों की एक बुनियादी असेसमेंट करनी होती है। उसके लिए एक डेडिकेटेड पेशेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम किया गया है जो आने वाले तमाम मरीज़ों की एक 2 से 3 मिनट की एक मुख्तसर सी असेसमेंट के बाद ये अंदाज़ा लगा लेता है, ये तखमीना लगा लेता है कि आया मरीज़ का इलाज ज़कात से किया जाए या डोनेशन से किया जाए। उसके बाद मरीज़ को बता दिया जाता है कि आपका इलाज ज़कात या अतियात के फ़ंड से किया जाएगा और हर महीने के अख्ताम पर एक ज़कात कमेटी तश्कील दी गई है जो इन मरीज़ों की असेसमेंट रीअसेस करती है कि आया ये जो मरीज़ ज़कात से इलाज किए गए हैं क्या इनका असेसमेंट ठीक हुआ या नहीं। इस कमेटी के अंदर शरिया के कुछ स्कॉलर्स मौजूद होते हैं, इंटरनल ऑडिट की डेडिकेटेड टीम मौजूद होती है और सीनियर मैनेजमेंट के कुछ लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद असेसमेंट के बाद ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हाँ, ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक हुई है और इन मरीज़ों का इलाज जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। अच्छा, लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अच्छा, लोग, क्योंकि ये रमज़ान का एक मुबारक महीना है और हमारी ये कोशिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत एक कौम के हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते रहे हैं। तो इस रमज़ान भी अगर लोग जो अतियात देना चाहें तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और आप कॉल कर 021
11118880 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप कराची से बाहर यानी लाहौर से अगर आप कॉल करना चाहें तो 04211118880 पे कॉल कर आप अपनी अतियात और ज़कियात दे सकते हैं। और अगर आप मुल्क से बाहर से अतियात करना चाहें, बैरून ममालिक अगर आप रहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.indushospital.org.pk पर जाकर भी अतियात ऑनलाइन दे सकते हैं। मोहसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिर में अगर आपको कोई पैगाम देना हो तो आप दे सकते हैं। बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खिदमत के फरीज़े से ज़कात के फ़र्ज़ तक आप और इंडस साथ साथ हैं, और जिसे आपने माजी में भी इंडस अस्पताल को काफ़ी सपोर्ट किया है, और हमारा ये मानना है कि ये अस्पताल जो है वो लोगों का अस्पताल है और लोगों से ही चल रहा है। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि इस साल भी हमारी ये कौम बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट करेगी और ताउन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके वक्त का। और अब बात करेंगे केडीए के हवाले से। केडीए कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है, ये कहना है सिंध हाई कोर्ट का। 2 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने गुलिस्तान जौहर में प्लॉट्स पर होने वाले कब्जे से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने केडीए को हुक्म दिया कि हर हाल में कब्जा माफिया से प्लॉट्स पर होने वाले कब्जे छुड़वाए जाएं। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी, और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लाहौर से मनाहिल आपको बताएंगे खास खबरों की तफसील। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी हर साल रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मुखय्यर हजरात की तरफ से रोज़ेदारों के लिए इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। रवां रमज़ान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार दस्तरखान सजाए जा रहे हैं। इन दस्तरखानों पर सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद रोज़ाना रोज़ा इफ्तार करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में नादार और मुस्तहिक़ अफराद की इफ्तारी के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुखय्यर अफराद ने इफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन मुकामात पर हज़ारों की तादाद में हकदार शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। लाहौर में गरीब अफराद की इफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर इंतजामात किए गए हैं। मुखय्यर हजरात ने जौहर टाउन, शादमान और गुलबर्ग में इफ्तार दस्तरखान लगाए हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुस्तहिक़ अफराद इफ्तारी कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक इसार का महीना है। इस महीने में मजदूरों और मुआशरे के महरूम अफराद का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अफ्तार दस्तरखान पर रोज़ादारों को समोसे, पकौड़े, खजूरें, बिरयानी समेत मुख्तलिफ फल और ठंडे मशरूबात दिए जा रहे हैं। अफ्तार दस्तरखान पर रोज़ा अफ्तार करने वाले शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस अच्छी अफ्तारी करना गरीब के बस में नहीं रहा। तवील रोजे के बाद जिस्म को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की ज़रूरत होती है और इन दस्तरखानों पर अच्छी तवज्जो की जा रही है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ा अफ्तार कराने की रवायत दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खासी आम है। इन मकामात पर न सिर्फ मुस्तहिक़ अफराद अफ्तार करते हैं बल्कि अफ्तार के लवाज़मात के साथ साथ खाने का एहतमाम भी किया जाता है। लाहौर पुलिस की मुसलसल ड्यूटी का सिलसिला जारी। PSL मैचेस से दौरा ऑस्ट्रेलिया और हॉर्स एंड कैटल शो की ड्यूटियों के बावजूद रमज़ानुल मुबारक में 10,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। रमज़ानुल मुबारक के सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में बता रहे हैं नुमान शेख। लाहौर पुलिस को गुज़िश्ता 3 माह से छुट्टी ना मिल सकी। PSL के मैचेस के बाद हॉर्स एंड कैटल शो, जश्न बहारा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान समेत सियासी रैलियों की सिक्योरिटी पर पुलिस के 10,000 जवान तैनात रहे। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में भी पुलिस एहलकार बगैर थके शहरियों की जानो माल की हिफाजत पर मामूर हैं। तो लाहौर पुलिस DIG ऑपरेशंस में आपको इशोर कराता हूँ कि लाहौर पुलिस रमज़ानुल मुबारक के दिनों में आपकी जानो माल की हिफाजत, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए दिन रात मेहनत करेगी। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हम तमाम मसाजिद में जहाँ पे नमाज के इज्तिमात होने हैं, तरावी के इज्तिमात होने हैं, जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमात है, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है। DIG ऑपरेशंस ने तमाम डिविजनल SPs को भी फील्ड में मौजूद एहलकारों के साथ सड़कों पर ही अफ्तारी का हुक्म दिया, जबकि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए जामिया प्लान तश्कील दिया गया है। कि जो ट्रैफिक की रवानी है अफ्तारी के टाइम में, उसके लिए हमने सिक्योरिटी प्लान बनाया है और कोशिश यही की है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो ऑफिस के बाद और अपने वर्क प्लेसेस से जब उन्होंने घर जाना है तो अफ्तारी से पहले स्मूथली अपने घरों को पहुंच सकें।
SSP ऑपरेशंस मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि रमजान उल मुबारक के आखिरी अशरे में यौम अली की सिक्योरिटी के साथ तमाम मार्केटों और बाजारों की सिक्योरिटी और गश्त बढ़ा दिया जाएगा और निगरानी के लिए तमाम SPs के साथ वो खुद भी फील्ड में मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की हदायत पर IG जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से पंजाब भर की जेलों में मुकीद अफराद के लिए 60 दिन की सज़ाओं में कमी का ऐलान किया है। सज़ाओं में कमी पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 216 के तहत की गई है और इसके इतलाक इन तमाम कैदियों पर होगा जो रवां साल जेल कवानीन के खिलाफ वर्जी में मुलव्वस ना होंगे। सज़ाओं में कमी का इतलाक दहशत गर्दी, मंशियात और हदूद ऑर्डिनेंस की दफात के तहत सज़ा होने वाले कैदियों पर नहीं होगा। माली गबन और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वाले कैदी भी इस रिलीफ से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। पंजाब में गंदम की नई फसल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमा खुराक ने बिना सरकारी परमिट गंदम खरीदने, ज़ख़ीरा करने और ट्रांसपोर्ट करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है और बिना परमिट हज़ारों टन गंदम दूसरे इजला और सूबों को ले जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां सरकारी मराकज़ पर अनलोड करा दी गईं। और अब बात कर लेते हैं अगले साल पाकिस्तान में होने वाली साउथ एशियन गेम्स की, जिसके लिए लाहौर को गेम्स का सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला लिया गया है। जी जनाब, तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी हमें रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों का आगाज़ कर दिया, जबकि हल्का बंदियां हंगामी बुनियादों पर 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए सूबाई हुकूमतों से नक्शा जात और डाटा फौरी तलब कर लिया गया। जुमे को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियां और फौरी और हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज़ करेगा और ये काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 13 अप्रैल तक आम इंतखाबात का मुकम्मल एक्शन प्लान पेश करने का हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो मुल्क में जमहूरी अमल के तसलसल, शफाफियत और रोल ऑफ लॉ के लिए अपना आईनी किरदार अदा कर रहा है। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क में रवां हफ्ते रमज़ान और सियासी सूरत हाल के बाइस महंगाई में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई से मुतल्लिक अदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में 1.53% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने कहा कि मुल्क में महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 17.87% पर पहुँच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 22 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 53 रुपये 20 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद टमाटर की औसत कीमत 153 रुपये पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने बताया कि प्याज 13 रुपये 37 पैसे फ़ी किलो, लहसुन 8 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। हालिया हफ्ते घी की फ़ी किलो कीमत 6 रुपये 31 पैसे इजाफे के बाद 476 रुपये 23 पैसे हो गई। इस हवाले से हमने बात की है इस्लामाबाद के बासियों से। आइए आपको दिखाते हैं। ये तो हर साल इसी तरह होता है। जब भी रमज़ान शुरू होता है महंगाई आ जाती है, गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं करती। पहले महंगाई से मारे हुए हैं, फिर रमज़ान की वजह से मज़ीद महंगाई हो जाती है, तो हर चीज़ मुश्किल हो जाती है रमज़ान में। ये पाकिस्तान है, ये कलमे को नाम पे बना था और ये पूरे साल की रोटियां जो है ना सिर्फ रमज़ान में कमाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रमज़ान से पहले की प्राइसेस हैं कम से कम उसको मेंटेन रखें, उसको ना बढ़ाएं। चीज़ें ली है, भिंडी ली है 230 रुपए किलो। आज तक कभी भी हमने इस तरह का रेट नहीं भिंडी का देखा था। हमेशा 60 रुपए 70 रुपए किलो, 230 रुपए किलो कभी भिंडी हुई है? ज़रा खुद सोचें। इतनी महंगाई, बस भाई हमारी तो बस हो गई है। इमरान खान की बस अब जो है ना, इमरान खान की छुट्टी हो जाए, ख़त्म हो जाए बस। आपको तो पता है कि जब भी पाकिस्तान में रमज़ान की आमद होती है तो वाहिद हमारा इस्लामी मुल्क ऐसा है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो यहाँ पे महंगाई में इजाफा हो जाता है। बल्कि अगर आप देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में इसके बकौल सस्ताई हो जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में जो इस्लामी एक इतना अच्छा महीना है, लेकिन जैसे ही वो आता है लोगों पे बोझ डाल दिया जाता है। एक फल नहीं खरीद सकता एक आदमी, गरीब आदमी। तो इस मुल्क का तो कोई कुछ नहीं कह सकते इस पर हम। देखिए, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई पीछे से जब कम होती है तो फिर कीमतें तो राइज होनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमारा मुल्क ज़री मुल्क है। अब ज़राअत छूट गए लोगों से, लोग जो है ना बड़े बड़े सोसाइटियाँ बन गई हैं, ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं,
तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना या तो दूर दराज से आ रही हैं तो फिर वो तो महंगी मिलेंगी, ज़ाहिर बात है उसके पीछे फिर जो है ना डीजल पेट्रोल का खर्च है। ये तो तकरीबन 4 साल से ही बढ़ रही हैं तकरीबन। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ताकि रमज़ान के अंदर लोगों को रिलीफ मिले। अगर इस महीने नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है इस गवर्नमेंट का। वो मुसलमान जो है ना वो इसी तरह करते हैं, जब कोई त्यौहार आता है ना तो दूसरे गैर मुस्लिम जो हैं उन त्योहारों पे सस्ता करते हैं कि लोग सारे शरीक हों। ये जो त्यौहार आता है तो इसमें ये महंगाई करते हैं, ज़्यादा लूटते हैं कि पूरा साल हम खाते रहेंगे और लूट लें गरीब लोगों को, बस लूट लेते। हमारा मुल्क जो है ना ये नाम का मुसलमान है, जब भी रमज़ान आता है तो जितने भी ये चीज़ें हैं सब के रेट्स ऊपर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पेट्रोलियम डिवीजन ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 35 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर समरी काबीना को अरसाल कर दी, जिसमें पेट्रोल फौरी तौर पर 27 रुपये और हाई स्पीड डीजल 35 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश की गई है। समरी में आगाह किया गया कि कीमतें बरकरार रखने से 30 जून तक तकरीबन 200 अरब रुपये से ज़ायद का बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना होगा। समरी के मतन के मुताबिक 1 मार्च से 31 मार्च तक कीमतें बरकरार रखकर 11 अरब 73 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, जबकि वजारत तवानाई ने अप्रैल के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी की मद में 55 अरब रुपए की समरी ईसीसी को भिजवाई, लेकिन ईसीसी ने अप्रैल के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। दुनिया भर में पासपोर्ट पर नज़र रखने वाले इदारे हेनले ने साल 2022 के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी। जापान ने एक बार फिर दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट 109 नंबर पर रहा। बैनुल अक़वामी इदारे हेनले की जानिब से 112 ममालिक के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें जापान ने एक बार फिर दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट होने का एजाज़ अपने नाम किया। जापान के साथ सिंगापुर दर्जा बंदी में पहले नंबर पर मौजूद है। दोनों ममालिक के पासपोर्ट रखने वाले दुनिया भर में 192 मकामात तक बगैर वीज़ा के रसाई हासिल कर सकते हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। PIA 22 अप्रैल से सिडनी के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ करेगी। परवाज़ें इब्तिदाई तौर पर जुम्मे को लाहौर से सिडनी और इतवार को सिडनी से लाहौर चलाई जाएंगी। मुसाफिरों की ऑस्ट्रेलिया के दीगर 8 शहरों तक रसाई के लिए वर्जन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन के साथ इंटरलाइन टिकट की सहूलत होगी। PIA के CEO अरशद मलिक ने नेटवर्क की तोसी पर इत्मीनान का इजहार किया और मार्केटिंग और फ्रंट लाइन टीमों को मुसाफिरों के लिए बेहतरीन खिदमात फराहम करने की हिदायत की। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिर PIA की वेबसाइट, PIA के ऑफिशियल सेल और एंड्रॉयड ऐप से भी बुकिंग ले सकते हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम 9 अप्रैल से जिना पार्क रावलपिंडी में रमज़ान 10 पिन बॉलिंग लीग का आगाज़ हो गया है। 9 अप्रैल को इफ्तिताही मैच खेले गए, जबकि लीग के बकिया मैचेस 16 और 23 अप्रैल को खेले जाएंगे। इवेंट में 3 कैटेगरीज के मुकाबले रखे गए, जिनमें मास्टर सिंगल्स, डेफ मर्दो खवातीन के इवेंट्स शामिल हैं। पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के सदर इजाजुर रहमान का कहना था कि रमज़ान 10 पिन बॉलिंग लीग के इनकाद का मकसद हमारे कौमी खिलाड़ियों के साथ साथ डेफ कम्युनिटी को बॉलिंग के शोबे में अपनी सलाहियतों को चमकाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इवेंट के तमाम मैचेस जिना पार्क रावलपिंडी में खेले जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाजरीन, हर साल 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत मनाया जाता है। हर साल इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को दरपेश सेहत से मुतल्लिक तशवीश के खसूसी मौजू की जानिब तवज्जो मबजूल कराई जाती है। दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन सबसे पहले 1950 में मनाया गया। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। आलमी दायरा सेहत के ताउन से हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में अमराज से बचाव के हवाले से शऊर उजागर करना है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुत्तहिद होकर हर बीमारी का तदारुक और दिफा करने में आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। बातें छोटी छोटी सी होती हैं जिसको बताएं, किसी को ज़ख़म है, किसी को उल्टी है, किसी को और तबीयत ख़राब हो रही है, कैंसर है, तो उससे पहले, अलामतों से पहले ही प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको बता दे कि भी ये अपने टेस्ट करना है, ये दवाई खानी है, आप उससे बच सकते हैं। आलमी यौम सेहत 2022 के मौके पर आलमी दायरा सेहत वबाई अमराज, आलूदा सैयारे, कैंसर, दमा, दिल की बढ़ती हुई बीमारियों के हवाले से तहरीक को फ़रोग़ दे रहा है।
عالمی ادارہ صحت کے اندازے کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 13 ملین سے زیادہ اموات ماحولیاتی وجوہات کے بنا پر ہوتی ہیں۔ اس میں آب و ہوا کا بحران بھی شامل ہے، جو کہ انسانیت کو درپیش صحت کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔